So let's see what are we dealing here today. Seems to be okay. So this is a sum of admission of partner SYGC. Okay, this is from the textbook actually, SYGC textbook, question number 7 for the academic year 2020-21. Okay, so let's see what this problem is saying actually. Okay, so I'll just read out first. Alright, so the balance sheet of Bhavesh and Chandra, who share profits and losses in the ratio of 3:1. Alright, the original ratio is given. We will call it old ratio. This will be useful, maybe or may not. ठीक है, the balance sheet is given as at 31st March 2018. Alright, so balance sheet looks pretty clear. Bank debtors, they have some receivables, they have stock lying, they have land and building, and they have a goodwill. Alright, ठीक है, so they already have goodwill which is appearing in the balance sheet before admitting a new partner. Then they have creditors, they have workman compensation reserve, they have general reserve and the original capitals. Alright, let's see किसको add कर रहे. Okay, so Alia is getting admitted. Alia was admitted on 1st April 2018. ठीक है, on for 1/5 share on the following terms. ठीक है, so these are the basic things. Alia shall bring 20,000 for a share of goodwill and necessary amount for a share of capital in cash. Oh, alright. So this is something new. देखो अभी तक हमने जो sums किए हैं उसमें whenever new partner is entering in the firm, okay, so हमें इस तरीके से clearly बताया जाता है ना कि so and so amount of money that partner is bringing towards the capital, so and so amount is coming for the goodwill, something like that. It is everything is mentioned in the problem. तो यहाँ इस केस में गुडविल कंट्रीब्यूशन तो बोला है इनकमिंग पार्टनर का, दैट इज़ आलिया, तो उसका गुडविल कंट्रीब्यूशन हमें पता है, पर उससे बिजनेस में पार्टनर बनने के लिए हाउ मच कैश ही हैज़ टू ब्रिंग इन ये हमें बताया नहीं है. सो दिस इज़ न्यू अबाउट दिस प्रॉब्लम. तो देखते हैं क्या होता है, इसे हम सबसे एंड में देखेंगे. देन ओके, बैड डेट्स एंड सेकेंड एडजस्टमेंट लुक्स प्रीटी गुड. ठीक है, बेसिक है. मार्केट वैल्यू, ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑलराइट. देन फोर्थ इज वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000. ऑलराइट, ठीक है, इसका तो एडजस्टमेंट हम कर लेंगे, बट वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता क्यों है ये ज़रा एक बार समझ लेना. समझो तुम्हारे बिजनेस में देयर इज़ अ फैक्ट्री और समथिंग लाइक दैट वेयर वर्कर्स work and there is, suppose a contingency occurs where some worker gets injured or something like that. If something like this happens, then rather than putting money from our own pocket, what firm decides is let's keep certain money aside if something like this happens. Okay, अगर किसी वर्कर को एक्सीडेंट वगैरह हो गया तभी पैसे देने पड़े तो हम उसके लिए एक रिजर्व साइड में रखते हैं कि हम इसमें से वो पैसा यूटिलाइज करेंगे. ऑलराइट, सो इसलिए होता है ये वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व. देन अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम, ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेसिक. नाउ द सिक्स्थ एडजस्टमेंट, दिस इज द कैच ऑफ द सम. द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. द फर्स्ट थिंग, taking old partners total capital as base. All right, so these are the main fundas of this problem. All right, then actual cash is to be paid off through and by the partners for adjusting their capital. ठीक है, ये कर लेंगे. Okay, just remember the first adjustment का ये half part, that is necessary amount of her share of capital, and दिस सिक्स्थ एडजस्टमेंट जो हाईलाइट किया है फर्स्ट एंड सिक्स्थ एडजस्टमेंट में, एक्चुअली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. तो ये हम सबसे एंड में देखते हैं. ये एक नई चीज़ है इस प्रॉब्लम में, ये हमने अब तक की नहीं है. ठीक है, तो चलो क्या क्या है वो हमारी बेसिक प्रोसीजर पहले फॉलो करते हैं. जैसे कि भावेश एंड चंद्रा का ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज़ 22,000 एंड 28,000, यू कैन सी हियर. सो ये हम पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं. ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट रिकॉर्ड. आलिया आने से पहले जो उनके पास ऑलरेडी कैपिटल था, सो दैट इज़ भावेश इज़ 32,000 एंड चंद्रा इज़ 28,000.
ठीक है. नाउ लेट्स सी उनके पास और कोई रिजर्व है क्या. ठीक है, अगर रिजर्व ट्रांसफ़र नहीं करना है तो पहले बैलेंसेस ओपन कर लेते हैं. चलो दैट इज़ ऑल्सो ओके, इट डजेंट मैटर तुम्हें कैसे करना है. सो एक बैंक अकाउंट है अपने पास, देखो ऑलरेडी देर इज़ 20,000 लाइंग इन द बैंक. सो चलो उसका भी एक हम लोग बैलेंस ओपन करके रखते हैं. सो बैंक अकाउंट इज़ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एज एन एडमिशन की सारी प्रोसीजर स्टार्ट होने से पहले उनके पास इतना कैश है या बैंक में इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो हमने वो रिकॉर्ड कर दिया. ओके, नाउ सेकेंड स्टेज वुड बी सी इफ देर आर एनी रिजर्व्स. येस, वी हैव जनरल रिजर्व. नाउ रिजर्व्स आर नथिंग बट अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. हमने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा साइड में रख के ये रिजर्व्स बनाए हुए हैं. तो आज तक इस पे काम किसने किया है? भावेश एंड चंद्रा है ना, पार्टनर्स. सो ये रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. इसमें आलिया का कोई हक नहीं है क्योंकि ये सब आज तक की हुई मेहनत का है. तो पहले ये लोग दोनों क्या करेंगे, अपना अपना पैसा दे विल जस्ट डिस्ट्रीब्यूट टू देयर कैपिटल अकाउंट्स. तो जनरल रिजर्व इज़ 24 एंड यू नो देयर रेशियो इज़ 3:1. ठीक है, सो लेट डिस्ट्रीब्यूट दिस जनरल रिजर्व बिटवीन टू ऑफ देम इन their respective ratio. So by general reserve, okay, I'll just write the way I always write. ठीक है, जनरल रिजर्व देखो, एंड कैसे वो ट्रांसफ़र करने वाले. जनरल रिजर्व इज़ 24, राइट. जनरल रिजर्व इज़ 24. सो लेट्स जस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस 24,000 अमंग देम. तो रेशियो इज़ 3:1, राइट. तो ये हो गया 3/4. सो उस हिसाब से एक का हो गया 18,000, दैट इज़ भावेश का हो रहा है 18,000, एंड 1/4 हो गया चंद्रा का. सो चंद्रा विल गेट 6,000 आउट ऑफ दैट. सो दे विल जस्ट ट्रांसफर दिस बिफोर एडमिटिंग आलिया. सो लेट जस्ट रिकॉर्ड दिस 18,000 एंड 6,000. ठीक, ओके. नाउ तो हमारा क्या हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल्स हो गए, बैंक हो गया. वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, देखो यहाँ पे रिजर्व है बट आई एम नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस बिटवीन भावेश एंड चंद्रा ओनली बिकॉज सी देयर इज़ एन एडजस्टमेंट फॉर दिस. ओके, सो इसका जो भी होगा वो हम बाद में देखते हैं. फ़िलहाल उसको हम ट्रांसफ़र नहीं करते क्योंकि उन्होंने वहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है. सो हम उसे अभी हाथ नहीं लगाएंगे. सो हमारे बेसिक ट्रांसफ़र्स हो गए. जो एक चीज़ बोली थी यहाँ पे एक नई चीज़ मिल गई, देखो कि ऑलरेडी गुडविल इज़ अपीयरिंग इन द फर्म. ओके, सो जिस तरीके से जनरल रिजर्व इन दोनों का है उसमें आलिया को हमने कुछ भी नहीं दिया क्योंकि आलिया जस्ट शी इज़ अबाउट टू गेट एडमिटेड इन टू दिस फर्म. सो जनरल रिजर्व उन्होंने एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. इन द सेम वे ये गुडविल जो है, लाइक यू नो द डेफिनेशन वाइज यू नो दैट मनी वैल्यू ऑफ द फर्म, यू नो. सो लेट्स कीप इट असाइड, बट ऑलरेडी जो गुडविल अपीयर हो रहा है ये भी उनकी मेहनत है ना, इन दोनों की, भावेश एंड चंद्रा. सो वेन एवर द गुडविल अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, इन द केस ऑफ एडमिशन, इफ देर इज़ गुडविल विच ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, तब क्या होता है, ये जो दोनों पुराने पार्टनर्स हैं दे विल जस्ट राइट इट ऑफ एज एन, और लेमन वर्ड्स नॉर्मल अपने टर्म्स में बोलना है तो इस गुडविल को दोनों मिलके हटा देंगे. ठीक है, सो इफ़ दे वांट टू राइट इट ऑफ, तो यू नो द एंट्री, राइट. ये एंट्रीज़ वगैरह हमने सब थियरी सेशंस में किया हुआ है. ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि वो तुम्हें आ रहा है. ऑल राइट. सो गुडविल देखो अभी अगर ये राइट ऑफ कर रहे हैं, सो ये राइट ऑफ भी कैसे करेंगे, उनके रेशियो में, राइट. 42,000 एंड सो लेट्स सी दोनों में किस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. सो इट्स 3/4. 3/4 इज़ 30 एंड ऊपर 1,500. ठीक है, सो 31,500 एंड 1/4 इज 10,500. ठीक है, सो आलिया बिजनेस में एडमिट हो रही है, इसलिए जो ओरिजिनल उनके पास गुडविल था ऑलरेडी बैलेंस शीट में जो था वो उन्होंने राइट ऑफ कर लिया. सो एक प्रोसीजर वाइज याद रखना, जैसे हम रिजर्व्स को एडजस्ट किया हमने, उसी तरीके से इन द केस ऑफ एडमिशन इफ़ the goodwill appears in the balance sheet, okay, already appears in the balance sheet, so it's a common practice that old partners will write it off in their respective ratio.
ओके, इस गुडविल, ठीक है। सो ये गुडविल हमने राइट ऑफ कर दिया 31,500 एंड 10,500। अभी देखते हैं आगे क्या है। और सो बेसिकली बैलेंस शीट में जो भी था बिसाइड्स एडजस्टमेंट, जो भी हमें बैलेंस शीट में से ट्रांसफ़र करना था वो हमने सब कुछ वैसे के वैसे कर दिया। ओके, सिर्फ एक गुडविल एक नया पार्ट था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अभी आलिया एडमिट हो रही है, लेट्स सी उसको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। सो आलिया शैल ब्रिंग 20,000 फॉर अ शेयर ऑफ गुडविल, एंड ये जो नेसेसरी पार्ट वाला है ये खाली हम बाद में देखेंगे, सो अभी मैं उसे पढ़ भी नहीं रहा। So Alia shall bring 20,000 for a share of goodwill. Okay, so if she is bringing cash towards goodwill, so you know the entry, right? So the goodwill 20,000 है, all right. This got recorded, and you know the transfer. This goodwill will be distributed among old partners. ओके, सो लेट्स डू द सेम थिंग। जैसे 42 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, वैसे ही जो आलिया ने 20,000 दिया है गुडविल के लिए और द प्रोपोर्शन ऑफ गुडविल, उसके लिए जो उसने 20 दिया है उसे भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो इट्स इजी टू कैलकुलेट। 15 एंड रिमेनिंग इज फॉर चंद्रा, ठीक है। सो गुडविल भी हमारा ट्रांसफ़र हो गया, दैट इज़ 15,000 एंड 5,000। ओके, सो ये तो बेसिक एंट्रीज थी, दैट इज़ बैंक टू गुडविल एंड गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सो वो हमने कर दी, एंड द सेकेंड पार्ट जो है फर्स्ट एडजस्टमेंट का वो हम बाद में देख रहे हैं। ओके, लेट्स मूव अहेड। नाउ अंजू एन ओल्ड कस्टमर इज आर डेटर। ओके, अंजू एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वॉज रिटन ऑफ एज बैड हैज़ पेड 400 इन कैश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ओके, सो बेसिकली अंजू नाम का अपना एक डेटर था जिसको हमने एज बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया था। ओके, जिसको हमने एज बैड डेट्स दिखा दिया था कि ये बंदे ने नहीं दिया है। नाउ समहाउ कहीं से तो अंजू ने हमें वो पैसा दे दिया है, ठीक है। अगर पैसा दे दिया है, सो एक बात हमेशा याद रखना, बैड डेट्स रिकवरी, दैट इज़ जो चीज़ को मैंने खर्चा दिखा दिया था वो चीज़ मैंने रिकवर कर ली है। सो दैट वो बैड डेट्स का एंड ये प्रोविज़न का, ठीक है। प्रोविज़न एक तरीके का रिजर्व है, राइट। सो ये प्रोविज़न एंड ये जो 400 मुझे रिकवर हुआ है, इन दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। ओके, प्रोविज़न इज़ फॉर फ्यूचर इवेंट्स, एंड ये जो 400 हुआ है ये अब भी सडनली हमें रिकवर हुआ है। तो इस प्रोविज़न को एंड ये जो कैश रिकवरी है उसे कभी मिक्स मत करना, इवन दो ये डेटर से रिलेटेड है। तो अपने जो बहुत सारे डेटर्स है उसमें से एक अंजू कोई तो था जिसने हमें 400 नहीं दिया था और हमने उसे बैड कंसिडर कर दिया था, पर अभी वहाँ से रिकवरी हो गई है, ठीक है। तो रिकवरी हो गई है मतलब बेसिकली बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, पैसा मिल गया। तो आई जस्ट राइट बैड डेट्स, ओके, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आई राइट बैड डेट्स रिकवर्ड। ओके, ठीक है, बैड डेट्स रिकवर्ड एंड कितना था वो 400। ओके, नाउ देयर इज सम स्पेलिंग एरर, बेयर विथ मी, ठीक है। सो बैड डेट्स रिकवर्ड 400, पैसा मिला ना, सो बैंक डेबिट कर दिया, ठीक है। एंड द प्रोसीजर इज फ़ायदा हुआ है, सो वी आर मेंटेनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो एज पर रिवैल्यूएशन अपनी जो प्रोसीजर है उस हिसाब से अगर फ़ायदा हुआ है सो जस्ट क्रेडिट इट, ऑलराइट, ठीक है। ऐसी एडजस्टमेंट हमने की नहीं है पर ये लॉजिकली समझा होगा, इट्स वेरी इजी एंड बेसिक एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग टू बी टेकन एज 40,000, ठीक है। तो लेट्स सी ओरिजिनल लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 30 है, ठीक है। सो 30 का लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000, ऑलराइट। सो लेट्स गो टू बैलेंस शीट फर्स्ट, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ है वो लिख लेते हैं एंड देन रीवैल्यू कर देते हैं। सो दैट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग, ओरिजिनल वैल्यू वॉज 30,000, ठीक है, एंड ये 40 हुई है, ठीक है। दैट मीन्स ये अप्रिशिएट हुई है ना, राइट। एंड अगर ये 40 हो गई है मतलब कितने से बड़ी, 10,000। सो लेट्स जस्ट रिकॉर्ड दैट
सो एक इफेक्ट अपना बैलेंस शीट में हो गया, दैट आर बिल्डिंग is appreciated. So if asset is increased or asset is appreciated, it's a good thing, so credit it. Alright, and कितने से बड़ा है? 10,000. Alright, now let's see what is next. I'll just save it. Okay, now worksman compensation reserve is to be increased by 10,000. Original is 30. सो जैसे हमने लैंड एंड बिल्डिंग का लॉजिक लगाया, वैसे ही फर्स्ट जो दिया हुआ है उसे हम ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करते हैं. सो वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड, ऑलराइट, वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड में ओरिजिनल वैल्यू थी 30,000. नाउ इफ़ यू नोटिस, ओके, बेसिक लॉजिक लगाना. मैं WCR और वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड कहाँ लिख रहा हूँ? लाइबिलिटी साइड ना, बराबर, क्योंकि ये मेरा फंड है या रिजर्व लिखा है, रिजर्व है, चलो ठीक है, ठीक है. सो आई ऑल्सो राइट रिजर्व. ओके, सो मेरा ओरिजिनल रिजर्व था 30,000 एंड एडजस्टमेंट क्या कह रही है? एडजस्टमेंट में दे आर सेइंग कि वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000. ठीक है, सो अगर 10,000 से बढ़ाना है तो हम 10,000 से उसको बढ़ा देते. ठीक है, सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि बढ़ा दो, तो एडिशंस कर देते. यू कैन राइट एनीथिंग, एक्सप्रेशन इज अप टू यू. ठीक, सो 10,000. ऑलराइट, ठीक है. सो बेसिकली मेरा वर्क्समैन कॉम्पनसेशन फंड अब हो गया 40,000. ओके, अब टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूँ? जब मेरा रिजर्व बढ़ा रहा हूँ, बेसिकली माई लाइबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग. ओके, एंड एनी रिजर्व इज़ व्हाट, अगेन थियरी चैप्टर, अपना थियरी सेशन याद रखना. एनी रिजर्व इज़ व्हाट, अक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा बाजू में निकाल के बनाया हुआ होता है रिजर्व. सो बेसिकली अगर मैं रिजर्व बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब आई एम रिड्यूसिंग माई प्रॉफिट टू दैट एक्सटेंट. सो ये जो 10,000 से मैं लाइबिलिटी मेरी बढ़ा रहा हूँ, उसको भी आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड. ऑलराइट, सो कितने से बढ़ाया हमने लाइबिलिटी को? 10,000 से. सो रिकॉर्ड कर देते हैं. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है. तो वर्क्समैन आई होप समझ गया होगा. नेक्स्ट इज अनअकाउंटेड अक्रूड इनकम्स of 200 to be accounted for. All right, unaccounted, that is 11th standard का याद करना. Unaccounted is error of omission, हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया है. accrued income, पैसा आना बाकी था, of 200 to be accounted for. so ऐसे कुछ 200 रुपये थे जो हमें रिसीव होने वाले थे, that is something was receivable, और हमने उसकी एंट्री करना हमसे रह गया. ठीक है, एंट्री करना रह गया है, तो एनीथिंग रिसीवेबल इज़ माई एसेट, राइट. तो मैं एसेट में लिख देता हूँ जस्ट रिसीवेबल की जगह पे आई राइट अक्रूड इनकम. दैट इज़ ये रिसीव होना चाहिए था. ओके, हुआ है, नहीं हुआ है अब तक. सो अक्रूड इनकम है, जस्ट लाइक बिल्स रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज़ योर एसेट. सो आई एम रिकॉर्डिंग ऑन द एसेट साइड दैट 200 रुपीज़ इज स्टिल और येट टू बी रिसीव्ड. तो हमने उसको एक इफेक्ट यहाँ पे दे दिया. एंड नेक्स्ट इफेक्ट वुड बी, एसेट बढ़ गया ना, सो बाय अक्रूड इनकम, दैट इज 200. ओके, फाइन. नाउ नेक्स्ट, the capitals of all partners are to be in new profit sharing ratio, taking old partners total capital as base after adjustment. Okay, actual cash is to be paid off, brought in by the partners for adjusting their capital events. Okay, this is the most important part of this sum. So before going there, let's see liability and assets में ऐसे कौन से items है जिसे हमने अब तक कोई हाथ नहीं लगाया, जिसे कोई adjustments थे नहीं. So in that way, देखो बिल्स रिसीवेबल पे कुछ नहीं था, स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एंड क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी. तो हम इनको ऐसे के वैसे रिकॉर्ड कर देते हैं पहले, एंड देन वी विल मूव एड फॉर द 6th एडजस्टमेंट एंड द
सेकेंड हाफ। सो अपना बिल्स रिसीवेबल है 10,000, स्टॉक इज़ 20, राइट। तो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं एज देर इज़ नो एडजस्टमेंट। सो बिल्स रिसीवेबल is 10, right? Bills receivable is 10,000 and stock is 20, ठीक है। So bills receivable 10,000 and stock is 20। ओके, एंड एक था क्रेडिटर्स, जैसे उस पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो हम क्रेडिटर्स को भी रिकॉर्ड कर देते हैं। So creditors were 20, all right. So creditors are 20,000, ठीक है, simply, all right, okay. Now let's go to the sixth adjustment. The only tricky part of this sum was the sixth adjustment. बाकी I guess fourth adjustment थोड़ा नया था, समझ गया होगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट इज़ ऑल्सो ओके। एज एन ऐसी एडजस्टमेंट्स जनरली हमने सम्स में देखी नहीं है, ठीक है, समझ गया होगा तुम्हें। तो अभी करते हैं द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। आई एम रीडिंग द सिक्स्थ एडजस्टमेंट। कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स हैव टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट। ओके, सो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस कहा गया है, ओके, आफ्टर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सो टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालने के लिए, ठीक है, अब ये प्रोसीजर समझ लेना हम कैसे इसको सॉल्व करने वाले, बस यही अलग पार्ट है इस सम में, ठीक है। सो अगर मुझे टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स निकालना है, सो सबसे पहले देखो ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इस पे मुझे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, ये प्रॉफिट या लॉस विल बिलोंग टू भावेश एंड चंद्रा। यू मस्ट बी रिमेंबर दिस, राइट, ये याद है ना। सो ओल्ड पार्टनर्स को ये रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, सो इट इज़ क्लियरली विजिबल, क्रेडिट साइड इज़ हैवी बाय 600 रुपीज़, है ना, 10,000 एंड 4,400 200, ठीक है, चलो। सो 10,600, सो बेसिकली माई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 600, all right. So let's see, so we will transfer this profit. Okay, you can write profit on revaluation transfer to capital anyhow, the way you want to express it. So I just write to profit and I'll transfer it to old partners. So let's say पहला अपना partner is Bhavesh's capital, ठीक है, and the second one is Chandra. All right, so 600 rupees है, again we'll distribute this into 600 and again we'll distribute that in their ratio, that is 3:4, because ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उस पर भी आलिया का तो कोई हक है नहीं, उनका ही सब कुछ है अभी तो ये सब कुछ ये लोग एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो बेसिकली 450 भावेश विल टेक एंड 600 का 1/4 विल बी टेकन बाय चंद्रा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देते हैं, भावेश इज टेकिंग 450 आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ 600 ऑन रिवैल्यूएशन एंड 150 इज टेकन बाय चंद्रा अकॉर्डिंग टू द रेशियो। सो लेट जस्ट बोल्ड इट, ये अपनी पहली ट्रांसफ़र एंट्री है, ठीक है। सो लेट जस्ट ट्रांसफर दिस रिवैल्यूएशन। सो भावेश ने कितना लिया 450 एंड चंद्रा ने ले लिया 150, ऑलराइट, इसको भी बोल्ड कर देते, अच्छा रहेगा। चलो, तो अपनी फर्स्ट ट्रांसफ़र एंट्री हो गई है। एक बार अभी फिर वो लाइन पढ़ता हूँ कि द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, ये वर्ड पे ध्यान देना, ऑल पार्टनर्स, इसका मतलब हमें आलिया का भी कैपिटल एडजस्ट करना है, पर कैसे करना है वो देखते हैं। सो कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस, ठीक है।
सो एक चीज़ यहाँ पे काफ़ी आसान है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ना. सो ओरिजिनल रेशियो कितना है 3:1 एंड उसमें आलिया आ गई 1/5 के लिए. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बहुत इजीली पता चल गया होगा. तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ, ये बस वर्किंग नोट समझ लेना और कुछ नया है नहीं इस सब में, ये पार्ट थोड़ा अलग है. सो आलिया का शेयर है 1/5 राइट, ठीक है. एंड उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो सब में दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 3:1. तो इस 3:1 में सिर्फ 1/5 दैट इज आलिया इज इंट्रोड्यूस्ड. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ओके. देखो ओरिजिनल है 3:1, इसमें आलिया आ गई, समझ गए. आलिया का 1/5 है ना, तो बस आलिया को ऐड कर दिया उसमें. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गया 3:1:1. ओके. अब तो हमारा ये पार्ट तो पता चल गया हमें कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, पर ये रेशियो कैसे यूज़ करना है. तो टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट. ओके. सो ये पार्ट अभी समझ लेना क्या है. सो सबसे पहले तो हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स राइट. सो जस्ट ऐड भावेशस कैपिटल एंड चंद्रास कैपिटल. सो हम भावेश का टोटल कैपिटल देखते हैं सबसे पहले. ओके. ये बस एडजस्टमेंट ज़रा समझ लेना, थोड़ा सा अलग है. ओके. अब देखो एडजस्टमेंट्स के बाद क्या बोला है ना, तो हमने एक रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह ट्रांसफ़र हो गया. तो अभी भावेश का कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा. देखो भावेश के पास ओरिजिनल क्रेडिट्स कितने, भावेश हैज़ 32,000, देन 18,000, देन 15,000, दैट इज़ 32 and 18 50 and 50 and 15 65 एंड क्रेडिट साइड में एक 450 भी है. सो बेसिकली भावेश का क्रेडिट साइड देखो कितना है, भावेश के पास है क्रेडिट में 65,450. ओके. माइनस भावेश के डेबिट में कुछ है क्या है, देखो 31,500 है ना. तो भावेश के पास अगर डेबिट में कुछ है तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा. ये तो बेसिक रूल है ना, बराबर. सो लेट जस्ट कैलकुलेट, ये माइनस करके कितना आता है, दैट इज 65,450 माइनस 31,500. ओके. सो इट इज़ 33,950. सो भावेश का कैपिटल है 33,950. सेम वे में हम चंद्रा का कैलकुलेट करते हैं, चंद्रास कैपिटल. सो चंद्रा का क्रेडिट साइड नोटिस करो कितना है. चंद्रा का क्रेडिट साइड इज़ 28 and 6 34, 34 and 5 39, 39,150 इज़ ऑन द क्रेडिट. ऑल राइट, वो रिकॉर्ड कर देता हूँ. 39,150. सेम वे माइनस, ओके, इवन ही हैड अ डेबिट गुडविल के वजह से 10,500 माइनस 10,500. ऑल राइट. सो बेसिकली कितना हो गया, 39,150 माइनस 10,500 माइनस 10,500. ऑल राइट. सो इनके पास है 28,650. आई एम सॉल्विंग इट ऑन द कैलकुलेटर. ऑल राइट, 28,650. ठीक है. सो ये हो गए उनके भावेश का अभी का कैपिटल एंड चंद्रा का अभी का कैपिटल. ओके. अब उन्होंने क्या बोला है, ये जो ओल्ड कैपिटल है ना, इस ओल्ड कैपिटल को हमें बेस कंसीडर करना है. ठीक है. अब बेस कंसीडर करना है मतलब उसका मतलब क्या है, देखो ये टोटल जो बचा है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. ओके. सो देखो भावेश का टोटल कैपिटल था 33,950 एंड चंद्रा का था 28,650. ठीक है.
सो देखो टोटल ओल्ड कैपिटल आई एम जस्ट एडिंग चंद्रास कैपिटल एंड सॉरी ऑलराइट. सो टोटल कैपिटल के लिए आई एम एडिंग भावेश का कैपिटल एंड चंद्रास कैपिटल, दैट इज 33,950 प्लस 28,650. ये जो है ना, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स मिल जाएगा. सो दैट इज 62,600. ठीक है. अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो अपना सिक्स्थ एडजस्टमेंट एक बार. सिक्स्थ एडजस्टमेंट में देखो क्या लिखा है उन्होंने. दे आर सेइंग दैट टोटल कैपिटल एज बेस आफ्टर एडजस्टमेंट टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल. सो इसलिए हमने टोटल कैपिटल निकाला ओल्ड पार्टनर्स का, पर कैसे, आफ्टर द एडजस्टमेंट. सो आफ्टर द एडजस्टमेंट इज आफ्टर रीवैल्यूएशन एंड गुडविल का जो भी एडजस्टमेंट्स हो सकते थे वो होने के बाद जो उनका कैपिटल है. सो और एक बार बोलता हूँ, हमने भावेश एंड चंद्रा के क्रेडिट्स ऐड कर दिए, डेबिट माइनस कर दिए, तो हमें पता चल गया एक्चुअली उनका अभी कैपिटल कितना है. ऑलराइट. सो यू कैन सी द प्रोसीजर हियर. सो ये हो गए उनके टोटल कैपिटल. अब एक चीज़ खाली देख लेना, एक बार फिर से लिखते हैं. आलिया का शेयर कितना था, 1/5 दिया है ना उसने, या उसको हमने 1/5 दिया है ना बिजनेस का. इसका मतलब रिमेनिंग पोर्शन या रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. ओके. देखो किसी भी चीज़ में से तुम 1/5 निकाल देते हो. सो लेट्स कंसीडर ₹1 ऐसे पकड़ लो. ठीक है. किसी भी चीज़ में से तुम 1/5 हिस्सा हटा देते हो. ओके. सो व्हाट इज लेफ्ट, यू आर लेफ्ट विथ 4/5. ओके. सो ऐसा समझ लेना, ₹1 में से 1/5 आलिया को अगर हम दे रहे हैं तो भावेश एंड चंद्रा के लिए कितना बचेगा, 4/5. अब भावेश एंड चंद्रा दोनों मिला के कितना है, 62,600 है, बराबर. सो अभी इसका मतलब ही ये है कि ये जो 4/5 बचा है, भावेश एंड चंद्रा का 4/5 जो बचा है, ये 4/5 रिप्रेजेंट्स 62,600. समझे. मतलब ₹1 में से 1/5 हटा दो तो जो भी बचा हुआ है वो 62,600 है, बराबर. देयरफॉर ये बस पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है. देयरफॉर कैन आई से दैट 4/5 जो बचा है, ठीक है, ये जो शेयर बचा है 4/5, दिस इज 62,600. ऐसा उनका कहने का मतलब है कि आलिया को देने के बाद जो बचा वो 62,600 है, पर वो क्या है, तो वो 4/5 है. ओके. तो अगर किसी भी चीज़ का 4/5 हिस्सा 62,600 है, ओके, किसी भी चीज़ का 4/5 हिस्सा अगर 62,600 है तो वो पूरी चीज़ कितने की होगी, ऐसे अभी इस तरीके से समझना है इसको. ओके. सो बेसिकली ये हमने पहले कभी तो स्कूल में किया होगा कि अगर 4/5 इज़ 62,600 देन वो पूरा हिस्सा कितना होगा, हाउ मच इज 1. ओके. You know how to calculate this, so you just have to cross multiply. So if I cross multiply, क्या आएगा हमारा कैलकुलेशन, बेसिकली 1 into 62,600 is 62,600 ही, राइट. मल्टीप्लाई बाय ये 4/5 है, राइट. रिवर्स हो जाएगा, नीचे आएगा तो, सो दैट इज 5/4. सो लेट्स सी हाउ मच इट इज. सो बेसिकली 62,600 into 5 divide by 4. All right. So the answer is 78,250. Okay. I am using the calculator, not doing it by myself. ठीक है. So 62,600 into 5/4. I hope ये फंडा समझ गया है. So that means total capital of the firm is 78,250. See what I said? Total capital of the firm I am saying. Total capital of the firm is 78,250. ओके. दोनों में फ़र्क है, टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स एंड टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, दोनों में फ़र्क है. सो ये टोटल कैपिटल मुझे मिल गया.
अब देखो, अगर एडजस्टमेंट में तुम देखोगे जो मैंने बोला था, फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड हाफ, द नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर इज आलिया शेयर, हर शेयर इज 1/5, सो नेसेसरी अमाउंट फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश। तो आलिया को बिजनेस में अगर 1/5 पार्टनर बनना है तो आलिया ने कितना पैसा लाना चाहिए था, ऐसा क्वेश्चन है। सो अगर मुझे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता है तो आई कैन से आलियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कैपिटल, कि आलिया ने कैपिटल की तरफ कितना पैसा लाना चाहिए था। अगर अब मुझे पता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 78,250 बराबर, इनटू आलिया को हम कितना दे रहे हैं, 1/5 दे रहे, तो आलिया 1/5 किसका देगी, कैपिटल जो है हमारे फर्म का उसका ही 1/5 देगी ना। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आलिया का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 15,650। इसका मतलब ये जो है ना नेसेसरी अमाउंट, इसको इस तरीके से पूरा ब्लॉक ही कर देता हूँ कि नेसेसरी अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये नेसेसरी अमाउंट कितनी आई पूरे कैलकुलेशन के हिसाब से। सो आलिया को अगर ये बिज़नेस में पार्टनर बनना है तो आलिया को कैपिटल के लिए 15,650 रुपीज़ बिज़नेस में लाने पड़ेंगे। ऐसा ये पूरा एडजस्टमेंट था। तो और एक बार ये फर्स्ट एंड सिक्स्थ एडजस्टमेंट में याद रखना, द सेकेंड हाफ यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड पार्ट एंड द एंटायर सिक्स्थ एडजस्टमेंट इज़ इंटर रिलेटेड। ओके, सो हमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिल गया कि आलिया ने 15,650 रुपीज़ लाने हैं। तो एनीवेज गुडविल के लिए वो दे चुकी है, मतलब शी इज़ इंटरेस्टेड इन द बिजनेस, सो डेफिनेटली शी विल गिव दिस मच कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सो आलियाज कैपिटल कितना दे रही है वो, 15,650। ऑलराइट, सो ये बेसिक एंट्री है। अभी अपनी नॉर्मल एंट्री हो गई कि इनकमिंग पार्टनर बिजनेस में पैसा ला रहा है। तो सेम लॉजिक से लेट्स से बाय बैंक, ओके, सो इसे हटा देता हूँ बोल्ड में से। बाय बैंक कितना आया अपना आंसर, 15,650। ठीक है, तो हमें सब कुछ पता चल गया। ओके, तो हमने अभी क्या क्या किया है इसमें देखो, फर्स्ट एडजस्टमेंट का सेकेंड हाफ एंड यहाँ तक हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें देखना है कि कैपिटल अकाउंट से वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। सो व्हाट आर दे सेइंग इज एक्चुअल कैश इज़ टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स फॉर एडजस्टिंग देयर कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, सो अभी हमारा आलिया का तो सब सॉर्टेड है। अब देखते हैं जो उन्होंने कहा है कि अभी भावेश एंड चंद्रा, उनका जो वो सेंटेंस है उन्होंने जो लिखा है ना कि कैश में से एडजस्ट करो, यहाँ से एक्चुअल कैश, ये जो लिखा है इसका मतलब है अभी जब तुम पूरा ये कैपिटल अकाउंट क्लोज करने वाले हो इस वक्त इस बैलेंस शीट में, ठीक है, ये सॉरी इस कैपिटल अकाउंट में भावेश एंड चंद्रा का जहाँ भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को तुम कैश अकाउंट से डायरेक्टली एडजस्ट करो, ऐसा उनका कहने का मतलब है। या डायरेक्टली कैश दे के या कैश लेके एडजस्ट करो, ऐसा उनका कहने का मतलब है। तो हम देखते हैं अभी वो किस तरीके से उन्हें एडजस्ट करना है। ओके, अब वो करने से पहले एक चीज़ हमारी रह गई। देखो, हमें पता चल गया कि भावेश का कैपिटल है 33,950, चंद्रा का वो कैपिटल था 28,650 एंड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 78,250। ओके, पर हमारे पास एक चीज़ मिली है। देखो, हमें पता चल गया है कि आलिया आने के बाद नया रेशो क्या है, राइट, 3:1 था ना। तो जहाँ 3/4 1/4 हो रहा था, आज से वो 3/5 1/5 एंड 1/5 इस तरीके से हो गया, राइट। सो अभी मेरे पास अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, सो एक चीज़ हमारी निकालनी बाकी रह गई, दैट इज़ कैपिटल बैलेंसेस, उनके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस इन प्रपोर्शन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्यों कर रहा हूँ,
यहाँ लिखा है देखो, द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, मैंने कहा था ना आलिया भी इसमें आएगी। कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स आर टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसलिए इसलिए अब देखते हैं। अभी देखो टोटल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपने नाम क्या है, भावेश। फर्स्ट बंदा इज़ भावेश। भावेश का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो क्या है, ये वाला। आलिया भी आ गई है ना अब, तो भावेश का रेशियो है 3/5। ओके, 3/5। एंड नया टोटल कैपिटल हमें फर्म का पता है 78,250। ये नए कैपिटल के हिसाब से या टोटल कैपिटल के हिसाब से भावेश का नया शेयर 3/5 है। उनका ये सेंटेंस का मतलब ये है, ये जो यहाँ पे कह रहे हैं कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सेंटेंस का मतलब ऐसा है कि जो भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया है उसमें से भावेश, चंद्रा एंड आलिया, तो भावेश एंड चंद्रा ही मेन, भावेश एंड चंद्रा नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 78,250 में से, दैट इज़ टोटल कैपिटल में से कितना पैसा लेंगे एज देयर कैपिटल। बेसिकली अपने पास है 78,250, राइट। उसमें से भावेश का शेयर दैट इज़ 3/5। भावेश का शेयर कम्स टू 46,950। देन चंद्रा इज़ 1/5 according to the new profit sharing ratio. He will take 1/5 out of 78,250. ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बी स्मार्ट। अगर आलिया का 1/5 इज़ 15,650 then obviously चंद्रा इज़ ऑल्सो 15,650 एंड आलिया का तो हमें पता चल ही गया। ओके, अभी अगर हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल में हर एक का हिस्सा कितना है वो पता चल गया है, दैट इज़ योर टू बैलेंस कैरिड डाउन, कि आलिया एडमिट होने के बाद उनके कैपिटल्स में कितना पैसा होना चाहिए। अब नॉर्मल भाषा में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आलिया बिजनेस में आने के बाद भावेश एंड चंद्रा का कैपिटल कितना होना चाहिए बैलेंस शीट में। चंद्रा का होना चाहिए 46,950, लेट मी चेक, करेक्ट है ना, 46,950, राइट। एंड चंद्रा का है 15,650, ओके। एंड आलिया का भी, आलिया ने जो कंट्रीब्यूट किया था वही है, दैट इज़ 15,650, ओके। हमारा ये भी क्लोज हो गया। अभी एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो है ये मेरे क्लोजिंग बैलेंस है सर, बराबर। आई नीड टू ट्रांसफ़र देम इनटू बैलेंस शीट। चलो कैपिटल्स लिख देता हूँ, भावेश। भावेश का कैपिटल है 46,950, ठीक है। देन चंद्रा का कैपिटल इज 15,650, राइट। एंड तीसरी जो आज से बिजनेस में भी नई पार्टनर बन गई है, आलिया इज़ ऑल्सो 15,650। ये सब हमने वहाँ पे वर्किंग नोट में कर दिया है, बराबर। तो आलिया भी हो गई 15,650। बेसिकली अपना कैपिटल्स अकाउंट आर क्लोज नाउ। तो इसको मैं एक अलग इंक में रख देता हूँ। दिस वॉज द मेजर और डिफरेंट कैलकुलेशन, दैट्स डन एंड डन, ओके। अब जो लास्ट चीज़ उन्होंने बोली है, दे आर सेइंग, देखो कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स हमने एडजस्ट कर दिया, टेकिंग ओल्ड पार्टनर्स टोटल कैपिटल एज बेस वो भी हमने कर दिया। लास्ट एक चीज़ बची, अब एक्चुअल कैश इज़ टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स। इसका मतलब है तुम्हें ये कैपिटल्स तो मिल गए, अब इन केस अगर तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होता, क्रेडिट साइड हो या डेबिट साइड हो, अगर टैली नहीं होता, उनका कहने का क्या मतलब है, अगर नहीं होता टैली तो उसे डायरेक्टली कैश से एडजस्ट कर लो। ऑलराइट, देखते हैं अब किसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बैलेंस दिखा रहा है। चलो ये करने से पहले आलिया को क्लोज कर देते, बिकॉज देयर विल बी नो मोर एडजस्टमेंट्स फॉर आलिया। उसका तो क्या है, शी विल जस्ट ब्रिंग मनी एंड बाकी सब मेन चेंजेस तो प्रपोर्शन में इन दोनों के ही होंगे ना, ठीक है। यू जस्ट हैव टू लुक फॉर कि कौन सा साइड हैवी दिख रहा है। ये हमें साइड पता था, दैट वाज 65,450 था।
एंड यहाँ पे इफ़ यू कैन नोटिस ये 46,950 एंड 31,500, ये ऑब्वियसली 70 के ऊपर जा रहा है. सो दैट इज़ 78,450, मतलब डेबिट साइड हैवी है. सो आई जस्ट राइट इट डाउन हियर 78,450. ओके. सो अब वही उनका कहने का मतलब है कि अभी जहाँ पे भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस तुम डायरेक्टली एडजस्ट कर लो. ओके. सो कैसे, कैश से हमने बैंक अकाउंट बनाया है तो मैं बैंक अकाउंट यूज़ करता हूँ. अभी यहाँ जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस इज 13,000. चलो इसको एक काम करते हैं, इस तरीके से लिख देते. ठीक है. सो एक बार एंट्री हो गई है अपनी. सो डिफरेंस इज, ये 65 था ना, सो डिफरेंस इज 13,000. ओके. देखो अभी उन्होंने कहा था ना कैश या बैंक से डायरेक्टली एडजस्ट करो, तो मैं फिर से बाय बैंक नहीं लिख रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने बाय बैंक की एंट्री कर दी है, बराबर. बैंक ऑलरेडी आ चुका है. सो यू डोंट हैव टू टाइप इट अगेन, राइट इट अगेन देयर. ओके. सो इसको हटा देता हूँ. सो हमने बैंक से एडजस्ट कर लिया भावेश को. ठीक है. तो बैंक अकाउंट में चला जाता हूँ. ठीक है. बैंक डेबिट हुआ है. सो लेट मी राइट टू भावेश इज कैपिटल 13,000 एंड चंद्रा का, देखो चंद्रा के कैपिटल में आई थिंक सो क्रेडिट हैवी आएगा. देखो चंद्रा का क्रेडिट इज़ हैवी, दैट इज़ 39,150 है चंद्रा का. ये तो हमें टोटल पता था, हमने पहले की थी टोटल. सो 39,150. सो आई राइट द सेम अमाउंट हियर 39,150. ओके. सो द डिफरेंस इज ऑन द डेबिट साइड. सो अगेन ये भी बैंक अकाउंट से एडजस्ट कर लो जो भी डिफरेंस है. सो डिफरेंस इज 15, 25 एंड 150. ओके. सेम 13,000 का डिफरेंस है. ठीक है. सो हमें इसका एक इफ़ेक्ट देना पड़ेगा जैसा हमने भावेश का इफ़ेक्ट दिया. सो टू बैंक कर दिया 13,000. सो बैंक में चले जाओ, बाय चंद्रा. Chandra's capital is 13,000. ओके. सो अपना कैपिटल ओवर रिवैल्यूएशन बहुत पहले ही ख़त्म हो गया. कैपिटल इज़ ऑल्सो डन. बैलेंस शीट जिस पे एडजस्टमेंट्स नहीं थे वो भी कंप्लीट हो गए. कैपिटल्स, क्लोजिंग कैपिटल्स भी हमें मिल गए. लास्ट एक बचा है अभी, खाली बैंक अकाउंट क्लोज करना है. तो चलो बैंक अकाउंट क्लोज कर देते. द सेकेंड लास्ट स्टेप ऑफ द सम. 20, 40, 40, 55 एंड 13. 55 and 13, 68, 69,050. राइट. बात कर देते. 40 प्लस 15,650 प्लस 13,000 प्लस 400, 69,050 बराबर था 69,050. लेट जस्ट क्लोज दिस 69,050. सो जो भी बचा बैंक में, दैट विल बी माई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट, दैट इज़ बाय बैलेंस कैरिड डाउन. सो कितना बचा, 13,000 गया ना 69 में से. सो 56,050. ऑलराइट. सो दिस 56,050 विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट एसेट साइड, दैट इज़ आफ्टर एडमिशन ऑफ आलिया. हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, 56,050. सो एवरीथिंग इज़ डन. बैंक अकाउंट भी क्लोज. वर्किंग नोट आई होप एंड आपको समझी है. वर्किंग नोट देख लेना एक बार. सो लास्ट इज जस्ट टैली द बैलेंस शीट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द टोटल. बैलेंस शीट इज 50, 50, 50 एंड इज 250. राइट. It will tally 46,950, 15,650 plus 15,650 plus 40 and 20, that is 60,000. Okay, so balance sheet will tally at 138,250. 138,250. I hope nothing is left. Capital is done, worksman done, general reserve to transfer and creditors. All right. I'll just calculate asset side to confirm. That is 40,250 plus 30 and this 86,050. Okay.
86050 46200. Wait, I think one more thing is left. I think we did not record debtors. No? There were debtors also. Yeah. So debtors 13 and provision 12. उसमें भी कुछ नहीं था. Okay. I just. So let's record that. Debtors 13,000. Because there was no adjustment on that. I just forgot to record 13,000. Less provision. So provision was 1,000. Alright. 1,000. जो है वैसे ही हम लिख दे रहे. So that's 12,000. Alright. So now let's tally this. Now it will tally. Liability, there is no issue. Asset, I had forgotten to record that. That is. ठीक है. So this is what 4615 and 15650 40 60. Okay, it's 138 250. And again यहाँ पे 100s place पे 200 है 50 है. Yeah, this will definitely tally. So your balance sheet will tally at 138 250. Alright.